منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إلى آخر هذه الآية، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ اور جس بات پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے، بات صرف اتنی ہے، میرے مرشد نے فرمایا جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، ٹھنڈیوں کی رات میں اس جلسے کا ٹیمپریچر تو 50 ڈگری سے زیادہ لگتا ہے، اور یہ ٹیمپریچر سورج کی دھوپ کا نہیں ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا ہے۔ اور جو دلوں میں گرمی ہے وہ ٹھنڈی راتوں میں بھی انسان کو جوان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سدا سلامت رکھے۔ مجھے پتا ہے میرے عزیزوں، ایم پی میں ایک علاقے میں حاضر تھا، جو ہمارے رشتہ دار ہر جلسے میں ہماری جاسوسی کے لیے حاضر آتے ہیں، پوری ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں۔ بڑے صاحب تھے، جلسے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ہم جہاں جاتے ہیں اتنی زیادہ ریکارڈنگ ہر چیز کیوں کرتے ہیں، ویسی بھی آپ کو مل جاتی ہے، ہمارے متعلق کوئی خاص بات ہے تو بتائیے، ہم کوئی غیر قانونی بات کر رہے ہیں یا پھر ملک کے خلاف کوئی فضا قائم کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ سب باتیں نہیں ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ امیج آپ کی بہت الگ بنائی گئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ایک چیز ہے جس سے ہم ایکٹیو رہتے ہیں، سترک رہتے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کے نوجوان اچھل کو زیادہ کرتے ہیں۔ کہا فساد تو نہیں کرتے، فتنہ و فساد تو نہیں کرتے؟ کہا نہیں، جذبہ اور جوش زیادہ آتا ہے۔ تو میں نے یہی کہا ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ہوا بھر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہوا بھر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اور ہم ہوا ٹائر میں نہیں بھر رہے ہیں، دلوں میں عشق مصطفیٰ کی بھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ اثر ہوگا، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ میں بات یہ کرتا ہوں میرے عزیزوں، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ سنیو، آپ مجھے بتاؤ آپ کا یہ ماننا ہے یا نہیں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے؟ دوسرا مانے نہ مانے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ جہاں میں، ہاں یہ جملہ آپ کو یاد ہو کر کے یہاں سے جانا ہے، اتنا یاد ہونا ہے، صبح اٹھو تو بھی گھر میں یہی کہتے اٹھو جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ کسی کے باپ کی حکومت کے تحت نہیں رہتے، تاجدار مدینہ کی حکومت ہے۔ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پر راج کرنا اور ہے، گردنوں پر حکومت قائم کرنا اور ہے، روحوں پر حکومت کرنا اور ہے۔
چند دنوں کے لیے کسی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے سے وہ اپنا ہمیشہ کی حکومت نہ سمجھے. ہم کیا، ہماری نسلیں اور ہمارے آبا و اجداد سب اسی قدم پر بکے ہوئے غلام ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے. حضور مرشد گرامی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ اگر آپ غور کریں تو صرف اور صرف اس کو گنگنانے میں ایک نعت کا شعر نہ سمجھے، بلکہ ایک عقیدہ بھی دیتا ہے اور ایک زندگی بھی دیتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک حوصلہ بھی دیتا ہے. جب کبھی تم مایوس ہو تو اس شعر کو پڑھو، جہاں میں ان کی چلتی. بہت زیادہ اگر کوئی پریشان کرنے لگے تو پھر کہو جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں. عزیزان گرامی وقار، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، صرف اور صرف گمان نہیں، عقیدہ ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا، اے محبوب آپ فرما دے میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں رسول بنا کر کے بھیجا گیا. کئی مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. میرے عزیزوں، وہ بھی سلطنت مصطفیٰ ایسی ہے ہمیں ادھر ادھر ڈگر ڈگر گھومنے کی ضرورت ہی نہیں. آج آپ کو پتا ہے، بے خوف ہو کر کے لکھنے والا ایک مجدد جس کو دنیا آج امام عشق و محبت کہتی ہے. قلم کبھی رکتا نہیں، قلم کبھی تھکتا نہیں، اور قلم کبھی کسی سے ڈرتا نہیں. بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر لکھنے والا قلم. اور پھر کبھی اگر جلال میں آئے تو اسی قلم سے یہ بھی کہہ دے، آداب سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. پھر یہ کہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے. اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کو اتنا بے خوف کس نے بنایا تھا؟ کیا بہت بڑی حکومتیں پیچھے کھڑی تھی؟ کیا بڑے بڑے نیتا ان کے مرید تھے؟ کیا حکومت کے عہدیدار آس پاس کھڑے رہتے تھے؟ کس بات کی وجہ سے یہ بے خوف قلم چلتا تھا؟ بڑے بڑے پیسے والے بھی آتے تو وہ امام احمد رضا یہ کہتے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. کسی کو بھی خاطر میں نہیں لایا، بلکہ اپنے متعلق تو یہ کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک میسج دیا تھا ہمیں، اور وہ میسج میں آج دہراتا ہوں آپ کے سامنے. اے سنیوں، آج کے حالات ایسے ہیں کہ خوب ڈر کر کے جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور بچے ڈرنے بھی لگ گئے. بہت سارے لوگ اپنے آس پاس کے حالات دیکھ کر کے سہم گئے. اب اس کے بعد ہماری نیا کیسے چلے گی؟ آگے سفر کیسے ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ. جو بے خوف بناتی ہے چیز، نڈر بناتی ہے، وہ یہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. آپ کو پتا ہے، جس کی حکومت آ جاتی ہے اور حکومت کے تحت جو رہنے والے تھوڑا بھی سورس ہوتا ہے تو چوہے بھی شیر بنتے ہیں. کسی سکتہ دھاری پارٹی سے اگر کسی غریب کا بھی تعلق ہو جائے تو بڑے ہلچل مچانے لگتا ہے کہ ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت ہے. یہ تو ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے. اگر منصب پر کوئی اس کا رشتہ دار بیٹھ گئے تو اس آدمی کے بھی زمین پر پیر نہیں پڑتے. یہ بھی اپنا گھمنڈ دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے. کیوں؟ حکومت آج ہمارے گھر والوں کی ہے، حکومت میں ہمارا آدمی ہے. ارے یہ 5 سال کی حکومت سے تعلق ہو جائے تو اس کے غرور کا عالم یہ ہے، سنیو تم پھر کیوں نہیں کہتے جہاں میں ان کی چلتی ہے. جو حکومت پہلے سے قائم ہے اور قیامت تک ہی نہیں، قیامت کے دن بھی چلنے والی، قیامت کے دن بھی چلنے والی ہے، تو اس سلطنت مصطفیٰ پر تمہیں کتنا فخر کرنا چاہیے. آپ کو میں بتاؤں، تاریخ میں بادشاہوں کا مزاج آپ نے دیکھا ہوگا نہیں.
पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूं। पहले के बादशाहों का मिजाज ये हुआ करता था कि कुर्सी लगती थी बादशाह की और उसके अगल बगल वजीर बैठे होते। अब बादशाह के महल का उसूल ये होता कि जब तक कुर्सी के इर्द गिर्द वजीर बैठे हुए हैं तो बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने वाला है, और अगर वजीर उठ गए तो यह अलामत थी कि अब बादशाह रियाया की नहीं सुनेगा, छुट्टी हो गई है। तवज्जो, समझ में आ रही बात? बादशाह के इर्द गिर्द वजीर बैठे होते और वजीर अगर खड़े हो जाते तो यह अलामत होती कि अब बादशाह किसी की सुनेगा नहीं, छुट्टी हो गई है, रियाया फिर कल आए या जब ये सल्तनत सजेगी फिर आए। ये उसूल, ये कानून बादशाहों के यहां हुआ करता। वजीर अगर उठ गया तो सल्तनत खत्म हो गई। खत्म का मतलब आज के दिन छुट्टी हो गई, रियाया अभी अपने मसाइल नहीं ले जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं, ये दुनिया का दस्तूर है। बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये मालूम करने के लिए वजीरों की कुर्सियां देखी जाती थी। आज मैं तुम्हें बताऊं, चलो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 4 वजीर हैं जो अल्लाह ने मुझे दिए, 2 आसमानों में है और 2 जमीन में है। आसमान में जिब्राइल और मीकाइल हैं और जमीन में अबू बकर और उमर हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। कौन है रसूलुल्लाह के 2 वजीर? हजरत अबू बकर, हजरत उमर। जिंदगी में जितनी भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ो, अक्सर हदीसों में जिक्र यही आएगा, हुजूर तशरीफ लाए, अबू बकर उमर साथ में आए, हुजूर यहां पर आए, अबू बकर उमर साथ में आए। वजीर हमेशा रसूल के साथ थे। अब अगर किसी के दिल में जरा बराबर खलिश आती हो तो मैं उससे कहता हूं, जाओ ताजदार मदीना का रोजा है अथर देखो, हुजूर आराम फरमा रहे हैं, बगल में अबू बकर भी है और उनके बगल में उमर भी आराम फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। रसूल के साथ दोनों वजीर आज भी सो रहे हैं। ये इस बात की अलामत है बादशाह भी कुर्सी पर विराजमान है और रियाया की आज भी सुन रहा है। इसी को कहा जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जीजान गिरामी, वो सल्तनत खत्म होने वाली नहीं है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब ये हमारा अकीदा है तो फिर आओ आगे का हमारा पैगाम सुनो। उसी रसूल की उम्मत हो, उसी रसूल के पुकारने वाले हो, उसी रसूल का कलमा पढ़ने वाले हो, तो फिर आज हालात से बेकाबू होकर घबरा कर जिंदगी में मुंह छुपाना ये तुम्हें जेब नहीं देता। ये हालात तो ऐसे हैं, मैं कहता हूं ऐ सुन्नियों, बहुत बेहतरीन मौका है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 100 शहीदों का सवाब हासिल कर सकते हो। बस हालात ऐसे आ गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को चुन चुन करके खत्म करने की दुनिया कोशिश कर रही है। नौजवानों को यह चाहिए था कि आज के इस दौर में मैं अपने नबी का गुलाम हूं, हुजूर के तरीके को जिंदा करके रखूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करके रखूंगा। दुनिया क्या कहती है इससे तुम्हें परवाह न होनी चाहिए। इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक बहुत अच्छी बात जो दिल पर लगती है। इकबाल कहता है, ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम उनकी ठोकर में दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। कहता है इकबाल के 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर से जिसको मोहब्बत हो जाती है वो ऐसी लज्जत है कि ये पूरी दोनों आलम से बेपरवाह हो जाता है। कौन क्या कह रहा है, किस तरफ से कौन आने वाला है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं। 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे इतना बड़ा यकीन हो कि जहां में उनकी चलती है और फिर डर डर करके जीता हो, खौफ खा करके जीता हो। आओ उन जंगों के मैदान में जहां पर बहुत छोटी सी तादाद को लेकर खालिद बिन वलीद उतर जाते थे। आप कहते हैं एक जंग में मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी जंगे मोता में। हजरत खालिद बिन वलीद कभी पीछे नहीं आते थे और कहते हैं मैं तो हर जंग में इसलिए जाता कि शहादत मिल जाए।
लेकिन जख्म खाता और फिर वापस आता। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो जज्बा था, जो यकीन था, वो इसी बात का था कि जहां में उनकी चलती है, रसूल पाक की निस्बत हमारे साथ है, फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का। आपको मैं बताऊं, ये तो दुनिया की बात है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के हालात बयान कर रहे थे। जब इंतकाल हो जाए और तुम्हें दफन करके तुम्हारे रिश्तेदार चले जाएं, तो जब लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, और उठा करके झिझोड़ करके उससे सवालात करेंगे, सख्ती के साथ पूछेंगे। यह हदीस पाक में मौजूद है। रिवायत यह है कि हजरत उमर बैठे हुए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ उमर, जब तुम कब्र में पहुंचोगे और तुम्हारे साथ जब ये फरिश्ते सवाल करेंगे, उस वक्त तुम क्या कहोगे? ये तो मौत के बाद की बात है, मौत के बाद, और वो भी भयानक शक्ल लेकर आने वाले दो फरिश्ते हैं। डर करके कांपना चाहिए, थरथराना चाहिए। लेकिन हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया बारगाह मुस्तफा में, आका, आपके दरबार में मेरा एक ही सवाल है, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मौत के बाद भी ये मोहब्बत कायम रहेगी? ये मोहब्बत मौत के बाद भी कायम रहेगी? हुजूर ने फरमाया, वो दुनिया वालों की मोहब्बत है जो मौत तक खत्म हो जाती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक कायम रहेगी। सुनो आगे, हजरत उमर कहते वजद में आ गए, कहा, या रसूल अल्लाह, अगर ये मोहब्बत कायम रहने वाली है तो फिर कब्र में फरिश्तों को जो मैं खुद निपट लूंगा, मैं देख लूंगा। हुजूर पाक की निस्बत साथ है, तो वो तो फरिश्तों से भी बात करने के लिए हिम्मत बता रहे हैं। आज तुम्हें किस बात का डर है, किस बात का खौफ? अजीजा ने गिरामी वखार, हमारे बुजुर्गान दीन जेलों में भी गए, फांसियों पर भी चढ़ गए, फंदों पर भी चले गए, लेकिन इस बात का उन्हें रोना कभी नहीं आया कि मेरे बच्चे छूट गए, मेरी जायदाद हड़प ली गई, मेरे रिश्तेदारों को दूर कर दिया गया। नहीं, जो गया है मोहब्बत मुस्तफा में, वो तो मुस्कुराते हुए गया, ये सोच करके कि असल मंजिल तो यही थी। यहां तक आने पर उनको कई मंजिलें गुजारनी पड़ी। इश्क कर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए, ये उनकी तमन्नाएं हुआ करती थी। डर इस बात का नहीं है, खौफ इस बात का ना रखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत और वो अजमत जो दिलों में है आज आपके अंदर, ये बहुत बड़ी दौलत है। कौन कहता है कि हम सब लुट गए, हम सब लुट गए? कौन कहता है कि हम बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं? ये सब कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं, वो सही भी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जाहिर देखा। और वो कह रहे हैं ये अनपढ़ कौम है, हमें तो वो पंचर पुत्र भी कहने लगे कि ये सिर्फ पंचर निकालने वाले लोग हैं। मैं उन जालिमों से पूछता हूं, पंचर पुत्र का इतना डर क्यों है कि 24 घंटे तुम्हारी दज्जाली मीडिया हम पर बहस करती है? अभी तो पंचर निकालने वाले से इतना डर है, फिर गर्दन पर चढ़ने वाले से क्या खौफ होगा? सीने पर अगर चढ़कर बैठने वाला हो तो फिर तुम्हारे डर की हालत क्या हो? एक तरफ कहते हो ये बैकवर्ड है, गिरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, तो मियां फिर हम पर क्यों भोगते क्यों हो इतना? कितने तो इलेक्शन हमारे नाम पे लड़ते हो, कितनी मीडिया की तंजीमें, बल्कि मीडिया की दुकानें हमारे नाम से चलती। अगर हम पर डिबेट ना करे तो मसाला मिलेगा कहां से? हाँ, मस्जिद होना चाहिए, बुर्का होना चाहिए, टोपी होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, और किसी मुसलमान के पास सुई भी मिल गई तो एटम बम लगना चाहिए। ये मुद्दे तो है ही है कि मैं कभी सोचता हूं, सुनियो आपको बताऊं, मैं सोचता हूं, अरे हमारे मुल्क में पता नहीं कितने धर्म हैं, कितने रिलीजन, कितने कौमें हैं, किसी का तो नाम भी नहीं आता। जगह जगह देखो हम ही हम हैं, और एक है कि हमारा बच्चा आगे आना नहीं चाहता। ये बार बार हमें दिखा दिखा करके दुनिया को बता रहे हमारे पास भी ये लोग हैं। मैं आपसे कहता हूं, हमारी कौम का हाल ये है कि हम डरे सहमे हुए कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये भोग भोग कर बताते नहीं कुछ है तुम्हारे पास, कुछ है तुम्हारे पास। तलाशी ले लो, ब्लेड भी नहीं मिलता, चाकू भी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, फिर भी 24 घंटे हमारे ऊपर एपिसोड बनाएंगे और कहेंगे कुछ तो है इनके पास,
कुछ तो है। हाँ, वही इकबाल जो कहता था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला। जो चीज तुम्हें जिंदा कर रखी हुई है, अभी लोगों की नजरों में जमाए रखी हुई है, वो चीज न तुम्हारी टोपियां हैं, न तुम्हारी दाढ़ियां हैं, न तुम्हारी गाड़ियां, न तुम्हारे बंगले। पूरी दुनिया में जो चीज खटकती है वो इश्क़ मुस्तफा की गर्मी है, वो मोहब्बत मुस्तफा की गर्मी है जो आज देखने को मिलती है। मेरे अजीजों, बाहर लोग बहुत नाचते हैं, लंबे लंबे गाने सुनाते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, उसका इतना असर नहीं होता। 8 साल का बच्चा क्या लब्बैक कहा, कुर्सियां भी खतरे में, बहुत सारे लोगों को हलचल होने लग गई, परेशानी शुरू। हम पूछते हैं आखिर इतने जुमले में असर क्या है, इतने जुमले में असर क्या है। यही बात 100 साल पहले अंग्रेज ये करते थे, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो वरना ये डेंजर है, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। इकबाल ने उनकी बात अपने अशार में लिखा है। अंग्रेज ये कहते थे ये भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है खाने पीने को और मौत से डरते भी नहीं है, मौत से डरते भी नहीं है। ये कौम है कैसी? जाहिर सी बात है ये कौम वही है जिसको खालिद बिन वलीद ने कहा था, रूमियों से जब मुकाबला हो रहा था, रूमियों के पास 1 लाख से ज्यादा लश्कर, और वो आए थे मुकाबल में, खालिद बिन वलीद को टॉन्ट मार कर कह रहे थे हमारे पास ठाठ बाट से रहने वाली फौज है और तुम बादिया नशीन सहरा से आए हुए, पैबंद लगे कपड़े, खजूर की घुटली पर दिन गुजारने वाले, मुकाबला करोगे? खालिद बिन वलीद ने एक ही जुमला कहा था, उस रूमी बादशाह से कहा, ऐ ईसाई बादशाह, तेरी कौम जितना शराब से मोहब्बत नहीं करती, हमारी कौम मौत से उतनी मोहब्बत करती। शराब पीकर जिस कदर तुम धुत और नशे में आते हो, उससे ज्यादा उम्मत मोहम्मदिया मौत से मोहब्बत करती है। क्यों? इसलिए कि मौत हमारे यहाँ हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद हो, उधर मुस्तफा की जियारत हो जाए। मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो हमें दर्श दिया है, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना न होगी, उसे जिंदगी मिली है। जो चीज दुनिया को आज भी खटक रही है वो इश्क़ मुस्तफा की दौलत है, निस्बत मुस्तफा की ताकत है, वरना फिर हमारा वजूद क्या है, हमारा वजूद क्या है। कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, तकरीरों से हो सकता है आपको ना समझ में आए, हमारी जुबानी ना समझ में आए, किताबों से पढ़ी हुई रिवायात को भी कोई कह दे कहानी है, कहानी है। ये पहले के वाकयात सुनाते हैं, छोटी फौज थी खालिद बिन वलीद की, सलाहुद्दीन की, शहाबुद्दीन की, ये इनकी कहानियां हैं। इतनी बड़ी बड़े लश्करों से कैसे मुकाबला करते थे, ये सब इनकी बनाई हुई कहानियां हैं। मैं उनसे कहता हूं, अगर हमारे सारे वाकयात कहानियां लगती हैं, रियलिटी में देखना हो तो फिर जाओ फिलिस्तीन के बच्चों को देखो, जाओ देखो, छोटे छोटे बच्चे कंकरियां लेकर खड़े हैं और सामने बड़ा दादागिरी करने वाला डिफेंस सिस्टम का मालिक, पूरी दुनिया का सुपर पावर, कई कंट्रियों की ताकत लेकर खड़ा है। शर्म आनी चाहिए दज्जालों, किससे मुकाबला कर रहे हो? उन निहत्ते बच्चों से जो कंकरियां हाथ में उठाई हुई है। तुम मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि हम मोमिनों को ये बता रहे हो, तुम छोटी तादाद में भी हो तो सुपर पावर के लिए भी तुम खतरा बन सकते हो। वो छोटी ताकत फिलिस्तीन की, गजा के मुसलमानों की सिर्फ इसलिए नहीं है कि जंग चल रही है। ऐ मोमिनो, तुम्हें बेदार किया जा रहा है, तुम्हें जिंदा किया जा रहा है। आज भी देखो, ईमानी ताकत जहां होती है, बड़ी सी बड़ी ताकतें उससे लर्जा बरंदाम होती हैं, खौफज़दा होती हैं। अगर इस इजरायली कुत्तों को डर नहीं होता, खौफ नहीं होता, तो 4 महीने 6 महीने के बच्चों को मार नहीं रहे होते। ये डर ही तो है,
जो इनको मार करके खत्म किया जाता है। हमने बहुत सारे लोगों से स्टेटमेंट सुने, क्यों मारा जा रहा है? 10,000 बच्चों को मार दिया। डर यह है कि कल को चलकर इनमें कोई मोहम्मद अरबी का शेर ना आ जाए। डर इस बात का है आज ही खत्म कर दो, वरना कल कोई सलाहुद्दीन ना बन जाए। मेरे अजीजों, मैं तो देखता हूं, अभी अभी यूपी के इलाके से आ रहे थे तो मैं किसी तकरीर में औरंगजेब आलमगीर का जिक्र किया तो कुछ लोगों को ऐसा लगा, आप भी जाहिर सी बातें होता है, कुछ लोगों को दर्द है, मरोड़ है। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, औरंगजेब तो गुजर करके पता नहीं कई 100 साल हो गए, क्या किया था उन्होंने कि अभी तक दर्द हो रहा है? दर्द इतना लंबा कैसे है? जाकर उनसे ही पूछना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे सामने ये बातें हंसी मजाक के लिए नहीं करता, ना ही कोई लतीफे सुनाता हूं, सिर्फ मैं ये याद दिलाता हूं कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कौन सी कौम में पैदा किया, पैदा करके फिर ये फरमाया भी कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाए गए हो। लेकिन जिंदगी गुजारने के तौर तरीके आज बदल क्या लिए? डर और खौफ ने हमारे दिल पर हुकूमत शुरू कर दी है। मेरे आका ने फरमाया था, एक जमाना आएगा जब दुश्मनों का रौब तुम्हारे सीने पर डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का रौब, खौफ डाल दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, ऐसा क्यों होगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाओगे और मौत से नफरत करने लग जाओगे। जब ये 2 चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएं तो दुश्मनों का, कुफार और मुशरिकीन का डर तुम्हारे दिल पर डाल दिया जाए, उनका रौब तुम्हारे दिल पर डाल दिया जाएगा। आज अजीजान गिरामी, अगर ये 2 चीजें तुम्हारे अंदर ना होती तो खौफ और डर से नहीं जीते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन गुलामों ने पूरी कायनात को बताया है, दुनिया को बताया है जिंदगी गुजारने का उसलूब क्या है। एक साहबी हजरत नौमान एक बादशाह के दरबार में गए, हुजूर के तर्जुमान बन करके, एम्बेसडर, और वो बादशाह बड़ी इज्जत के साथ आपको बुलाया। आपके आने से पहले आपके लिए रेशम का कालीन बिछाया गया। सहाबी हैं और इंटरनेट का जमाना नहीं है, फोन का जमाना नहीं है। वो सहाबी हुजूर के तर्जुमान सफीर बनकर गए, बादशाह के बाद रेशम का कालीन बिछाया और सोने की कलाई की हुई कुर्सी लगाया। ये बड़ा एजाज था उस जमाने का। लेकिन वो सहाबी जैसे ही गए, उन्होंने अपनी तलवार से उस रेशम के कालीन को हटा दिया और जब कुर्सी पर बैठने की बात आई तो उसको ठोकर मार के अलग कर दिया कि इस सोने की कुर्सी पर मैं नहीं बैठूं, रेशम के कालीन पर चले नहीं, सोने की कुर्सी पर बैठे नहीं। बादशाह ने कहा, कितना गुरूर है तुम लोगों, ये कितना गुरूर है, मैंने तो तुम्हारे एजाज में, तुम्हारे इकराम में ये बिछाया। उस सहाबी ने क्या कहा, मेरे अजीजों, हो सकता हुजूर दूर हैं, यहां कर ले, चलेगा, कौन मदीने खबर देगा, ये सोच सकते, दूर जाने के बाद बंदा कुछ भी कर ले। वो सहाबी कहते हैं, नहीं, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। मेरे आका ने फरमाया, मर्दों के लिए रेशम हराम है, मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं मदीने में भी होता तो यही अमल करता, यहां पर भी हूं तो यही अमल करूंगा। और ऐ बादशाह, एक कुर्सी नहीं, 1000 कुर्सियां भी सोने की लगा दे, मैं ठोकर मार दूंगा, इसलिए कि मैं गुलाम हूं मुस्तफा करीम का। उनको फख्र इस बात का नहीं होता कि बादशाह मुझे इज्जत से बुला रहा है। आज कोई नेता बुला ले तो लोग तो यहां अपने हुलिया ही बदल देते, हुलिया ही बदल दे। अरे वहां जाएंगे, हम पूजा भी कर लेंगे, हम उनके साथ उठक बैठक सब कर लेंगे, नाउजुबिल्लाह। अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखो, हर जगह पर तुम्हारे साथ निस्बत मुस्तफा है, हुजूर पाक की निस्बत है। और वो सहाबी को देखो, वो जहां पर भी है अपने नबी पाक की निस्बत को लेकर महफूज चल रहे हैं। वही इज्जत का सबब था, वही इज्जत का सबब था। दुनिया को उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। कई ऐसी हुकूमतें हैं, पता आपको, 2 सुपर पावर ताकतें उस जमाने में, एक पर्शियन एम्पायर और एक रोमन एम्पायर, जिसको कैसर और किसरा कहते हैं। ईरान की हुकूमत को किसरा कहा जाता था, बादशाह को, और रोम की हुकूमत को कैसर कहा जाता था, वहां के बादशाह को। ये दोनों हुकूमतों को सैयदना उमर फारूक की फौज ने धूल चटा कर रख दिया और ऐसे खत्म किया
کہ آج تک دوبارہ نہ کسرا آیا نہ کیسر آیا. 14 صدیاں گزر گئی. وہ کیا طاقت تھی, وہ کیسا جذبہ تھا. نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ساتھ لیے چلتے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. فرماتے ہیں صحابہ, تبری میں یہ بات موجود ہے کہ عراق فتح ہو جانے کے بعد وہ ایران فتح کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے. عراق اور ایران کے بیچ میں دریائے دجلہ دریا تھا, اور ایرانی فوج نے سارے پل جتنے تھے سب توڑ ڈالے, کہیں یہ مسلمان ادھر بھی نہ آ جائے. دریا کے اوپر جتنے پل تھے, برج تھے, سب توڑ ڈالے. سب پل ٹوٹ گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص 400 صحابہ کے ساتھ کھڑے, اور پھر پیچھے مڑ کر کے صحابہ سے کہا چلنا ہے اس طرف. صحابہ نے کہا ہاں چلنا ہے. ایک پل بھی نہیں, ایک برج بھی نہیں, اور کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں کیسے چلنا, کیسے جانا ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا میں آگے چل رہا ہوں, تم پیچھے چلو. سب پیچھے چل پڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص گھوڑے کو ہوا میں اڑا کر نہیں لے جا رہے ہیں, اس دریا کے پانی پر چلاتے ہوئے لے جا رہا ہے. دریا کے پانی پر چلاتے ہوئے جب وہ آگے بڑھ گئے, 400 صحابہ بھی پیچھے چل پڑے. یہ روایت میں تاریخ تبری میں فرمایا, ایرانی لوگ فارسی میں کہنے لگے دیوا آمدند, دیوا آمدند. ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے, جنات کی جماعت آ رہی ہے. کون سی جماعت ہے جو پانی پر چل کر آ رہی ہے؟ صحابہ کرام نے دنیا کو یہ بتایا تھا جہاں میں ان کی چلتی ہے. وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سریا کو سرا کرتے. انہوں نے تاریخ رقم کر کے بتائی ہے میرے عزیزو. اللہ کریم نے ان کے لیے زمین کو گھیر دیا تھا. جس طرف جاتے, حضرت عقبہ بن نافع ایک صحابی, وہ جب مصر کی حکومت ان کے ہاتھ آئی, عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی, وہ گھوڑا لے کر کے آتے تھے کھلے میدان. جذبہ نوجوانوں کیسا ہونا چاہیے. 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. گھوڑا اپنا تیز دوڑنے والا گھوڑا میدان میں, کھلے میدان میں لے آتے. چند ساتھی ان کے ساتھ پیچھے آتے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے اچھالتے تھے. کتنا اچھلے گا گھوڑا, کتنا کودے گا. تھوڑی اونچی اڑان اچھل کود کرتا تھا, پھر زمین پر آتا تھا. ان کے ساتھی پوچھتے عقبہ بن نافع, یہ کیوں گھوڑے کو ایڑ دے کر کے اچھالتے ہو, کیا کھیل ہے یہ گھوڑے کے ساتھ؟ کہتے ہیں میری صرف اتنی خواہش ہے کاش میرا گھوڑا اچھل کر کے چاند میں پہنچ جائے اور میرے مصطفیٰ کا پرچم لہرا دوں. چاند تک پہنچ جائے اور میں وہاں پرچم لہرا دوں. یہ جذبہ تھا ان کا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظمت کو اور اس نسبت کو لے کر ہر جگہ پہنچنے کی خواہش تھی. آج تم نے محدود کر دیا, اپنوں میں ہی سب اتنی محدود کر دیا ہے. یہاں تو ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سلام بھی نہیں کرتے. کہاں حضور پاک کی محبت سب تک پہنچانے کی بات. عزیزان گرامی وقار, یہاں رک کر کے بیچ میں میں کہوں گا, حالات تمہیں توڑنے کے لیے دشمنوں کے لیے ضرورت نہیں, اپنوں سے ٹوٹ جاؤ گے, اپنوں سے ختم ہو جاؤ. متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قصدوں میں سفایا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہو, اور قرآن نے کیا کہا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں انتشار نہ پھیلاؤ, ایک دوسرے میں تفریق نہ کرو. آج تمہارے جمع ہونے کے لیے بے شمار نقطے ہیں, لیکن اختلافات ایسے ہیں نعوذ باللہ. لوگ تو اب مومن کی موت پر بھی ہنسنے لگ گئے. ہمارا نہیں تھا, کون نہیں تھا, بس اپنے پیر کا مرید نہیں تھا, موت پر بھی تم ہنسنے لگ گئے. یہ کون سا دین لے کر چل رہے ہو؟ پتا ہے حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑی سی تکرار ہوئی تھی. حضرت بلال کالے رنگ کے تھے, حضرت ابو ذر نے ان کو صرف اتنا کہا, یا ابن ام سودا, کالی عورت کے بیٹے. حضرت بلال کے دل پر یہ بات لگ گئی. حضور کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے ابو ذر نے ابن ام سودا کہا, کالی ماں کے بیٹے. حضور پاک کو جلا ہے. آج ایک دوسرے کی عزتیں جو اڑاتے ہو, ایک دوسرے کے امامے کھینچتے ہو, لوگوں کے عیوب
मोहल्लों में बैठ करके गर्दानते हो। अब तो आम है, उलमा भी तुम्हारी तानाकशी से नहीं बच पाए। हर आलिम के पीछे, हर हाफिज के पीछे ये सारे अयूब बयान करके कितनों की दिल आजारी करते हो। पता है उम्मत में इंतशार का एक इतना बड़ा खला पैदा हो चुका है। हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा था, हजरत बिलाल को ये बात लगी, हुजूर जलाल में आए, आकर के क्या कहा हजरत अबू जर को हुजूर ने, अफीकल जाहिलिया, अबू जर अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जाहिलियत की बू बाकी है, जमाने जहालत की बू बाकी है। 3 बार हुजूर ने फरमाया और अंदर चले गए। हुजूर की नाराजगी सहाबा के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो हर चीज गवारा करते, नबी पाक का रूठना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सहाबा कहते मौत से ज्यादा खतरनाक चीज है हुजूर ने अगर चेहरा फेर लिया। सहाबा खुद कहते हैं कि अगर हुजूर ने बात नहीं किया और सलाम नहीं किया तो कहते मौत से ज्यादा सख्त चीज थी हमारे लिए, मौत से ज्यादा सख्त। हुजूर इतना कहकर अंदर क्या चले गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए। कहा खता हो गई मुझसे। ढूंढ करके लाए हजरत बिलाल, मस्जिद नबवी में आए, कहा ऐ बिलाल गलती हो गई, खता हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने जज्बात में और गुस्से के आलम में ये कह दिया था। वो तो सहाबा थे, अपनों में नरम दिल थे। फौरन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तकरार में हो गई बात, खत्म, माफ कर दिया हजरत बिलाल ने। लेकिन अबू जर कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं, गलती मेरी है। नीचे सो गए जमीन पर। कहा है बिलाल उस वक्त तक मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी जब तक तुम अपना ये काला पैर मेरे चेहरे पर रगड़ न दो। मैं जमीन पर सोता हूं, तुम अपना तलवा मेरे मुंह पर रखो और रगड़ो ताकि मुझे पता चले कि आइंदा कभी तुम्हें इब्न उम्मी सौदा ना करो। हजरत बिलाल क्या पैर रखते उनके चेहरे पर, उनको उठा लिया और सीने से लगाया। कहा अबू जर जिसके तुम गुलाम हो उसका मैं भी गुलाम हूं। हम दोनों में तो इत्तेहाद और मोहब्बत है। जुबान फिसल जाती है, गलती कर जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा के लिए खत्म कर दें अपने ताल्लुकात को। आज ये उम्मत को इस कदर इंतशार में डालकर खला करने वाले बहुत दर्दनाक अजाब के शिकार होंगे, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गजब के शिकार होंगे। जो उम्मत मुस्तफा को तोड़ता है अल्लाह उसको तोड़ देगा, उसको खत्म कर देगा, और जो जोड़ता है रब तबारक व तआला उसकी इज्जतें बढ़ाता है। मैं तो उन लोगों के जोड़ने की बात ही नहीं कर रहा जिनसे हमारा अकीदा मेल खाता ही नहीं। हम उनके इत्तेहाद की बात करते नहीं और जरूरत भी नहीं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है जहां में उनकी जबरदस्ती किसी और को हाथ मिलाने और मुंह फैलाने की हमें जरूरत ही नहीं है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और अगर इतनी ही बात पर हम जमा हो जाते तो क्या बड़ी बात थी, क्या बड़ी बात थी। मैं अपनों की बात कर रहा हूं। अजीज़ान गिरामी वक़ार सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जो माहौल पैदा किया था मदीने तैयबा में, वो तुम्हारे सामने रखो। उनके जज्बात तो ऐसे थे कि जंग के मैदान में जब कोई जख्म खा करके इंतकाल कर रहा हो, रूह निकलने वाली, मौत के वक्त तो आदमी अपनों को नहीं पहचानता। बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा बेटी कौन खड़ा है पहचानता नहीं। लेकिन उन सहाबा की अजमतों को लाखों सलाम। शिद्दते प्यास के बाद पानी की कटोरी करीब कर दी जाए और उसी असना में अगर कोई दूसरा मुसलमान पुकारता मुझे पानी चाहिए तो ये सहाबी कटोरी दूर कर देते थे, जाओ उसको दे दो। कैसे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआशरा तश्कील दिया था, ये कैसी मोहब्बतों का मौसम था। एक जंग में 3 सहाबा ने अपने भाइयों के लिए पानी कुर्बान किया और जान भी दे दी, जान भी दे दी। आज हमारे हालात क्या है, छोटी सी चीज पर तुम किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मुसाफा नहीं करना चाहते, सलाम नहीं करना चाहते, जबकि तुम्हारा जमीर खुद कहता है कि ये भी नबी पाक का गुलाम है, हुजूर की बात करता है, तुम्हारा दिल करता है। फिर अगर नफ्स की गुलामी करते हो तो मेरे अजीजों अपने दिल का इलाज कर लो और नफ्स के गुलाम बन जाओ तो फिर क्या होगा पता है। कुरान कहता है अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ महबूब क्या आपने देखा
क्या आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपना खुदा बना लिया। मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, अपनी तबीयत को, अपने नफ्स को अपना माबूद बनाकर रखा है। जैसे तबीयत जैसी ख्वाहिश चाहेगी हम वैसी करेंगे। इससे मिलना है, हाँ मिलेंगे, इससे नहीं मिलना है, नहीं। ये नहीं देखना है कि नबी पाक की गुलामी क्या है। जब ख्वाहिशात की पूजा करते रहोगे, रब तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ रसूल, क्या आप ऐसों की वकालत करेंगे जिन्होंने नफ्स की पूजा की है। कुरान पाक की आयत में बता रहा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, इस माहौल से निकलो, एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबीन। सही कहा है। मैं अपनों की बात कर रहा हूं, जहां हमें इंतशार ने तोड़ रखा है। अपनों के दामन खींचना, अपनों का क्रिटिसाइज करना, एक दूसरे को गाली गलौज के साथ इस तरह की सुबह करना कि तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है किसी से। आज जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। नशाते लज्जत ख्वाबे गिरां बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। एक हुकूमत है जो मदीने से चलती है, आपकी भी वही, हमारी भी वही है। गुलाम हम भी उसी रसूल के हैं, आप भी उसी रसूल के हैं। लेकिन हर गुलाम को अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियत दी, अलग अलग खुसूसियत दी है। नबी पाक के दरबार तक पहुंचने के लिए अजमेर का रास्ता भी है, बगदाद का रास्ता भी है, कलियर का रास्ता भी है, बरेली का रास्ता भी है, किछोचा मारहरा का भी रास्ता है। लेकिन ये सारे रास्ते नबी पाक की गुलामी ही सिखाते हैं और ले जाते हैं उसी शहंशाह के दरबार में। और इन सिलसिलों से पहुंच करके बंदा अगर ये नहीं कहेगा तो फिर वो गुमराह है, उस सिलसिले से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। सिलसिले से वाबस्ता होकर अगर ये कहता है तो कामयाब है। क्या चीज? जहां में उनकी चलती है। यहां पहुंच गया तो कामयाब है, यहां पहुंच गया तो कामयाब है। और अगर यहां नहीं पहुंचा, वो फिर ये कहता नहीं, यहां किसी और की भी चलती है। भटक गए, खसक गए और रास्ते से तुम ट्रेन से उतरे हुए हो। एक ही चीज है सब जगह पर जहां में उनकी चलती है। ताजुश शरिया तक ने ये कहा, उस सिलसिले को यहां तक आग देखे, यहां तक यही अकीदा मिल रहा है। आओ ऐ सुन्नियों, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मिशन आपको देकर जाता हूं। जब ये मालूम है जहां में उनकी चलती है, अभी कल ही रिजल्ट आने वाला है 5 स्टेट का। आप लोग भी न्यूज देखते होंगे, खबरें पढ़ते होंगे। देखना उसके बाद इधर के उधर घोड़े किधर बदलते हैं, कुछ इधर पार्टी में, कुछ उधर पार्टी में, इधर उधर होते रहते हैं। क्यों? उनके पास भी दलील है। भाई इनकी हुकूमत आ गई है, हम तो 75 थे, आजाद खड़े थे, हम इसमें थे, उस पार्टी में थे। गवर्नमेंट इनकी बन रही है तो दूसरी पार्टी में बैठकर करना क्या है? आओ पार्टी इनकी है, हुकूमत इनकी, इसी में चले जाते हैं। वो ना पब्लिक का देखते हैं, ना वोट देने वालों की सुनते हैं, लेकिन बिक करके चले जाते हैं। तो उनके पास दलील भी है। गवर्नमेंट के साथ जाएंगे, फंड मिलेगा, काम करेंगे। अपोजिशन में बैठ के क्या मिलने वाला है, वो दलील भी देते हैं। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी दलील दे रहे हैं कि गवर्नमेंट उनकी है, साथ में जाएंगे, फंड भी मिलेगा, काम भी करेंगे। वो भी 5 साल के लिए जब इतनी बड़ी मुखालिफत वो मोलने को तैयार है, पब्लिक की सुनने को तैयार है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, फिर अगर हम ये कहें जहां में उनकी चलती है, तुम्हारी पार्टी क्या कहती हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम कभी अपोजिशन में बैठना नहीं चाहते। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर हम यही कहते हैं, जब तुम्हारे हाथ दस्तूर ये है, हुकूमत जिसकी है उसके साथ होने से फंड मिल सकता है, काम करने का तरीका मिल सकता है, तो सुन्नी ये कहता है कल भी उनकी हुकूमत थी, आज भी उनकी हुकूमत है और रोज़े कयामत भी उनकी चलने वाली है। तो फिर इसकी उसकी बात क्यों करें? मारेरा मुतहरा की एक कीमती आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे? क्या गरज हमको किसी की जय विजय क्यों पुकारे? क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाहे बरकत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
जब आपको ये पता है कि हुकूमत के साथ जाने में बहुत फायदे हैं, तो मैं आपसे भी कहता हूं, दुनिया तुम्हें बता रही हुकूमत के साथ जाने में फायदे हैं, आ जाओ आमिना के लाल की हुकूमत के साथ। यहां पर भी फायदे हैं और वहां पर भी फायदे हैं, बल्कि कब्र में भी जाओगे तो फायदे ही फायदे हैं। उन लोगों के फायदे नहीं जो यहां अपोजिशन में थे, जो यहां पर आंख दिखाते थे, नबी पाक के लिए सलाम पढ़ना हो दलील चाहिए, हुजूर की मोहब्बत में बात करना हो, उनके पेट में मरोड़ अपोजिशन में ही रहे, और फिर कब्र में पहुंचने के बाद पता चलता है दो ही सवालों के बाद अटक गए। फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह तुम्हारा दीन कौन सा है, तुम्हारा रब कौन सा है, क्या है तुम्हारा दीन, क्या है, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, यहां तक तो बोल दिए। फिर जब हुजूर को दिखाकर पूछा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, अटक गया। अपोजिशन में बैठता था, दुनिया में अपोजिशन में था, अटक गया, कहा नहीं जानता नहीं जानता। और बरेली वाले से पूछा, मुनकर नकीर ने, क्या कहता था, तड़प कर कहता, अरे जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, ये तो मेरे आका हैं जिन पर सुबह शाम सलाम पढ़ता था। मेरे अजीजो आ जाओ उसी दरबार में, फायदा उसी में है, फायदा उसी में है। दुनिया आज हजार कोशिश करके तुम्हें अपनी तरफ माइल करे, कभी हुस्न की लालच, कभी दौलत की। नौजवान बिकता है तो दो चीजों पर, औरत और दौलत, और ये दो चीजें उससे निकल गई तो फिर कोई खरीद नहीं सकता। इन दो चीजों से बचना है, दौलत का और हुस्न का नशा तुम्हारे ऊपर ना आए। एक ही जरिया है, एक ही जरिया है, जिसको इकबाल ने कहा था, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको लज्जत आशनाई मिल गई नबी पाक की, दुनिया का हजार हुस्न मिलकर उसकी आंखों को नहीं खरीद सकता। हजारों दौलत के सिक्के बिछा दो, उसे कोई खरीद नहीं सकता। कलयुगी ने एक हिकायत बयान की है, शॉर्ट में बयान करता हूं। तीन भाई एक बादशाह के यहां गिरफ्तार हो गए, जवान थे, 22 साल 25 साल 27 साल के जवान तीन भाई। बादशाह ने कहा, मेरा धर्म कबूल कर लो, नहीं तो मार दूंगा, गर्दन मार दूंगा। उन नौजवानों ने कहा, नहीं, इतना सस्ता दीन नहीं, इतना हल्का नहीं। बादशाह ने जलाल में आकर के कढ़ाई में तेल गरम किया और उसमें बड़े भाई को डाल दिया। जल्लाद ने डाला, खौलते हुए तेल जल गया। दूसरे को उठाया, कहा तुम्हारा क्या है। बादशाह ने पूछा तो उसने, दूसरे ने कहा, वही जो मेरे बड़े भाई का, वही दीन मेरा भी है। उसने कहा, मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ दो, मेरे दीन में आओ। कहा, इतना आसान नहीं। उसको भी उठाया, तेल में डाल दिया, खौलते हुए तेल में। अगर एक चटका भी लग जाए तेल का, आपको अंदाजा है, और पूरे तेल में डाल दिया गया। खुशी से चले गए। तीसरा जो था, कड़ियल जवान, 22 साल का जवान है। नफ्स इस वक्त बहुत गलबे में रहता है, बहुत सारे नौजवानों के भटकने की उम्र यही होती है। बादशाह का एक वजीर था, उसने कहा, मुझे टाइम दे दे 1 महीने का, मैं इसका पूरा माइंड चेंज करके लाऊंगा, दिमाग बदल करके लाऊंगा। बादशाह ने कहा, अगर तू इसको बदल करके लाया तो तुझे मुंह मांगा इनाम। वजीर ने उस नौजवान को ले लिया और अपने घर गया। घर जाने के बाद क्या किया, उसकी एक हसीन और जमील खूबसूरत बेटी थी, जिसके निकाह के पैगाम बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों से आते थे, बहुत हसीन और जमील। अपनी बेटी को इस नौजवान के पीछे लगा दिया। कहा, इसको अपने चंगुल में फंसा ले, जो इनाम चाहे बादशाह से मिल जाए, बस तेरा काम ये है, इसको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर ले। उस लड़की ने कहा, ये तो मेरी चुटकी का काम है, लोग तो मेरे हुस्न को देखने के लिए कतार लगाते, ये तो मेरे घर के अंदर है। ठीक है, काम पर लग गई। रात को वो उस हुजरे में जाती जिसमें वो नौजवान था। जैसे ही वो खातून आती, ये नौजवान मुसल्ला बिछाता सजदे में चला जाता। वो बैठी इंतजार करती रहती, जब तक उसकी हरकत महसूस होती, ये जवान तो सर ही नहीं उठाता। वो थक करके सुबह होने से पहले चली जाती। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई। रोज उसका टाइम यही था और इसके सजदे का टाइम भी यही था। बाद में महीना गुजरने को आ गया। वो लड़की कहती, कैसा पत्थर दिल आदमी है, कैसा पत्थर दिल जवान है। पीछे से कहती है, मेरे हुस्न को देखने के लिए कतारें लगती हैं, बादशाहों के बेटों के पैगामात आते हैं, एक नजर भर कर देख तो ले, इस तरफ चेहरा उठाकर देख तो ले। उसने सर ना उठाया और कहा उस जवान ने
तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती, तू चली जा, इसलिए कि जिन आंखों ने नबी पाक के हुस्न को देखा है उन्हें दुनिया का हुस्न धोखा नहीं दे सकता, उन्हें दुनिया का हुस्न खरीद नहीं सकता। ये ताकत और कुव्वत के साथ बोला हुआ जुमला इतना भारी था, इतना असरअंदाज था कि वो लड़की पीछे से कह देती है मैं हार गई, मैं चाहती हूं कि तेरे दीन में मैं भी दाखिल हो जाऊं। इतना मजबूत दीन मैंने मेरे बाप का भी नहीं देखा, मेरे पुजारियों का भी नहीं देखा। जिस हुस्न की तू बात करता है मैं उसी हुस्न की तरफ आना चाहती हूँ, मुझे गुलाम बना ले। वो उठा और उसी वक्त उसको दायरे इस्लाम में दाखिल किया। आए थे दीन लेने के लिए और अपनी गर्दन दे गए। बहुत सारे वाकयात मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों। गुलाम मुस्तफा, ये खातून कहती है हम यहां से निकल चलेंगे, मैं तुझे आजाद करती हूँ, तवज्जो, आजाद करती हूँ। लेकर के वो खातून रात के वक्त जंजीरें खोलकर, दरवाजा खोलकर इस लड़के को लेकर बाहर निकल गई और शहर से बाहर ये लोग चले गए। और अभी शहर से बाहर आए थे कि घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत बड़ी फौज कोई आ रही थी, ये दरख्त के पीछे छुप गए। दोनों ने एक दूसरे से बात की, शायद कि बादशाह को खबर हो गई या वजीर को खबर हो गई, पूरे सिपाहियों को हमारे पीछे लगा दिया, फौज आ गई। घोड़े दौड़ते दौड़ते उसी दरख्त के करीब आकर रुक गए। ये लोग पीछे थे और अचानक रुक करके उस फौज के अंदर से आवाज आई, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ। नाम लेकर पुकारा गया। ये नौजवान बाहर आता है तो देखता है वो बादशाह की फौज नहीं, इसके शहीद दोनों भाई घोड़े पर सवार आए, जिनको चंद दिन पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो घोड़े पर सवार आ जाए हैं। देख करके ये मचल गया, कहा मेरे दोनों भाई जिनको शहीद कर दिया गया, तुम आए हो, ये फौज क्या है? दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे अजीज, ये तू देख रहा है हमको और ताज्जुब कर रहा है, क्या तुझे कुरान का ये फरमान याद नहीं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। देख हम भी जिंदा है और ये जो फौज आई है ये आम फौज नहीं, ये रसूलुल्लाह के बदरी सहाबा की फौज है और आए हैं तेरे निकाह में, आए हैं तेरे निकाह में। अजीजा ने गिरामी, एक बुजुर्ग ने फरमाया, उस नौजवान ने उन दोनों भाइयों से पूछा, उस खोलते हुए तेल में जब बादशाह डाल रहा था, चरमरा गई थी चमड़ी, जल गई थी, दर्द कितना हुआ होगा, बर्दाश्त कितना किया होगा। दोनों भाइयों से जब ये गुफ्तगू कर रहा था वो मुस्कुराए। दर्द किसको कहते हैं, तकलीफ किसको कहते हैं? जिस वक्त वो हमें तेल में डाल रहा था सामने तो रसूलुल्लाह का जलवा मौजूद था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके औरतों की उंगलियां कट गई, उन्हें दर्द नहीं हुआ। मदीने के ताजदार को देखकर रूह निकलने का दर्द कैसे हो सकता है? मेरे अजीजों, एक ही चीज है जो तुम्हें इन सब से आजाद करती है, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हुजूर की मोहब्बत अपने दिल में इतनी हो तो मुझे बताओ रात कितनी गई आपकी जिंदगी में, किसी रात आपने तमन्ना की आज की रात मौला मेरा मुकद्दर बेदार कर दे, मदीने के ताजदार को देखना चाहता हूं। तमन्ना क्यों नहीं किया, तड़प क्यों नहीं आती? क्या कभी रात को सोने से पहले ये सोचते हो मौला बहुत दिन हो गए जुदाई के, दूरी के, या चलो बारगाह मुस्तफा में भी कहते अकीदा तो तुम्हारा ये है ना, हुजूर के दरबार में मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। अगर तुम्हारा अकीदा है तो मांगा क्यों नहीं? हुजूर के दरबार में अब तक पूछा क्यों नहीं? रात को सोते वक्त ये क्यों नहीं कहा सरकार मेरी औलाद बिगड़ी है, या बिजनेस नहीं चलता है, दुनिया नहीं है, ये सारी बातें छोड़ देते, एक बार घर जाकर ये कहते मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए, घर को सजाते सजाते। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह।
اگر پکارا ہوتا تو نبی پاک کی عادت ہے نہ کہنا کبھی ان کی عادت ہے ہی نہیں. وہ تشریف لاتے ضرور آتے اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں جس کا دل جب درد کرتا ہے آمینہ کا لال وہاں تشریف لاتا ہے. شرف الدین بوصیری کا نام سنا ہوگا. امام شرف الدین بوصیری اسکندریہ مصر کے رہنے والے. لقوا کی بیماری آ گئی, فالج, پیرالائز, پورے ہاتھ پیر مفلوج, ہاتھ پیر کام نہ کرے اور سوتے سوتے چمڑیاں زمین بستر پر لگنے لگ گئی تھی. ڈاکٹروں نے حکیموں نے لا علاج کہہ دیا تھا. تب بوصیری نے کہا تھا امن تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی ام حبت الريع من تلقاء كاظمة وعومد البرق في الظلماء من إضمي فما لعينيك إن قلت تفاهمتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر البال والعلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم يا ربي واجعل رجائي منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شرف الدین بوصیری نے فالج کی بیماری میں کہا تھا, اسی کو تو میں کہہ رہا ہوں اگر تم کہے ہوتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی. شرف الدین بوصیری نے جب یہ لکھا دیر کس بات کی, اسی رات خواب میں تشریف لاتے. کہا بوصیری وہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے, وہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے. مچل کر کے سنانے لگے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اس قصیدہ بردہ کا پہلا شعر جو ہم پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائما ابدا, اتنا ہی مصرع شرف الدین بوصیری کا ہے. انہوں نے آدھا ہی لکھا تھا, سو گئے تھے اور جب پڑھ کر حضور کو سنانے لگے کہا مولا صلی وسلم دائما ابدا. آگے کا کہا نہیں آتا. حضور نے فرمایا آگے کا میری طرف سے اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. میرے عزیزوں, حضور پاک نے چادر بھی دی, جسم پر ہاتھ پھیرا. شرف الدین بوصیری کہتے ہیں صبح اٹھا تو نہ ہاتھ پیر میں فالج ہے نہ لکوا, جسم صحیح سلامت اور گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں, اور اٹھ کر کے دیکھتا ہوں تو خواب میں دی ہوئی چادر بھی میرے گود میں پڑی ہوئی. وہ کیا نہ دے, وہ کیا نہ دے. اسی کو میں کہتا ہوں جب وہ 700 سال بعد کی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال کے بعد شرف الدین بوصیری کے خواب میں آ کر ان کے فالج کو صحیح کر دے اور انعام میں چادر بھی دے دے, اسی کو پھر میرے مرشد کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. اور پھر کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہوا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے. میرے عزیزو یہ عقیدہ ہے ہمارا, یہ عقیدہ ہے ہمارا. یہ ابو حفص سمرقندی لکھتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا, ایک ہی بیٹا تھا اس کا, اور جو آدمی مرا تھا اس کا چہرہ جانور کا بن گیا. پتہ نہیں کیا کرتا تھا, لیکن بیٹے نے جب دیکھا باپ کا چہرہ گدھے کی طرح دکھ رہا ہے, دروازے بند کر دیا. گھر والوں سے کہا باپ کو جنازے میں کہاں لے جاؤں, ذلت رسوائی. اور بہت رونے لگے. باپ کا گناہ کیا تھا, کیا کرتا تھا, یہ چہرہ بدل گئے. بہت رویا. اور اس کے بعد گڑ گڑاتے ہوئے سوچ رہا تھا. عورتوں سے پوچھا کیا کریں باپ کا. کہا کہ گھر میں ہی گڑا کھودتے ہیں, یہیں دفن کرتے ہیں, لوگوں کو نہ دکھائیں گے نہ ہماری ذلت و رسوائی ہوگی, نہیں تو دنیا تانے مارے گی کہ اس کا باپ گدھے کی شکل کا بن گیا مرنے کے بعد. کون نہیں کہتا, چہرہ کالا بھی پڑ جائے تو لوگ پتہ نہیں کتنی باتیں بنائیں. وہ غم کے مارے چہرہ جھکائے گھر کے سارے دروازے بند کیے بیٹھا تھا. اچانک اس کے گھر میں دروازہ کھلا اور ایک شخص تشریف لاتے ہیں جن کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی.
वो आए सीधे आकर उस मैयत के चेहरे से चादर हटाई, सर उस पर हाथ रखा और फिर चादर ढांक दी। और ये नौजवान सर झुकाए बैठा था, इसके पास आए, पूछा कि क्या हुआ? ये सर उठाता नहीं और कहता मुझे पता नहीं आप कैसे आ गए, मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और अब आप आ ही गए। देख लिया मेरे बाप को, चेहरा बदल गया, जानवर की तरह हो गया, मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं दुनिया को? आने वाले शख्स ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा, जा तेरे बाप के चेहरे को कुछ हुआ तो नहीं, देख तो सही। वो उठता है, जाकर चेहरे से चादर हटाता है, 14वीं के चांद की तरह चमक रहा। इतना हसीन जमील उसका बाप जिंदगी में नहीं था, अब बन गया। अब वो रक्सा है, वज्द कुना है और अब तो सारी दुनिया को दिखाएगा। इसी खुशी के आलम में था वो बुजुर्ग, घर के दरवाजे तक पहुंच गए, जा रहे थे, दौड़ करके आया, पकड़ लिया, पूछा आप तो फरिश्ता बनकर आए मेरे घर पर, आपकी दुआ से अल्लाह ने मेरे बाप के चेहरे को बदला होगा, जरा जाते जाते बताएं आप कौन हैं? पलट करके चेहरे से चादर हटाई, कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। कहा मेरे बाप के साथ क्या हो गया था? रोने लग गया। कहा रसूल पाक ने, तेरे बाप का एक गुनाह ऐसा था जिससे परवरदिगार नाराज था, जिसकी वजह से मौत के वक्त उसका चेहरा बदल गया था। लेकिन जानते हो ए नौजवान, एक काम इसका अच्छा ये था, ये रात को बिस्तर पर उस वक्त तक सोता नहीं था जब तक 100 बार मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता था। मुझे याद करता हो रोजाना। फरिश्ता जो दुरूद इसका मुझ तक पहुंचाता, उसने आकर कहा रसूल पाक गजब हो गया, फला बंदा जो रोजाना रात आपको याद करता है 100 बार, आज उसका चेहरा बदल गया है, रब का गजब उस पर है। मैं उसी वक्त चल कर तेरे घर आया और देखा चेहरा बदला था, मगर मैंने चेहरे पर हाथ रखकर मौला से अर्ज किया, मौला अगर ये चेहरा नहीं सलामत रहा तो फिर कौन सा चेहरा जो मुझे याद करता है, जो मुझे पुकारता है? रब ने फरमाया महबूब हाथ हटाओ, पहले से ज्यादा हसीन बना दिया जाए। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये अता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, बयान से बाहर है, सुबह हो जाएगी मुझे कहते कहते, लेकिन फिर मैं इतना ही कहूंगा, इतना इतना मुझे सरकार ने नवाजा है जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो उनका कर्म है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आज आपसे फिर कहता हूं, जब तुम्हें पता है हर चीज वहां से मिलती है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, तो फिर इस दरबार में आना होगा। आज ही आ जाओ, अच्छा होगा। कल तो बड़े बड़े आने को तैयार होंगे, लेकिन उनका आना कोई फायदेमंद नहीं होगा। कयामत के दिन तो फिरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून भी आने को तैयार होंगे। वक्त वो उस वक्त मुनासिब नहीं है, कबूल नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा आज ही आ जाओ तो फायदा है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इस दरबार में आने से दुनिया मुझे पता नहीं कोसेगी, ताना मारेगी, पुराने जमाने का मुल्ला बन रहा है, मौलवी बन रहा है, छोड़ो इन तानों को। लज्जत आशनाई अगर मिल गई तो तुम्हें इनकी परवाह भी नहीं करनी होगी। कोई अगर कुत्ता भौंकता है उसे चढ़ करके ये बताना, इंतजार कर, थोड़े दिनों की बात है, कयामत का मंजर कायम होगा, तब फिर बताएंगे। हर्ष हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अरे वो तो मैदान वो होगा, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। आप मेरी इस बात को समझ करके चलो है नौजवानों, रात की इतनी तारीकी में जब तुम बैठे हो कुर्बानी दे रहे हो, एक कुर्बानी का मैं मुतालबा करता हूं। अक्सर लोग ये समझते हैं जहां मैं तकरीर के लिए जाता हूं, लोग जज्बात में आकर अपनी गर्दनें लेकर के हाजिर होने की बात करते होंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि मौलाना की तकरीर के बाद लोग तलवार उठा लेंगे, बंदूक उठा लेंगे। हम तो इस बात की कभी भी गुफ्तगू भी नहीं करते। मैं तो ये कहता हूं तुम्हारे लिए वो सब चीजों की अभी जरूरत भी नहीं। मैं तो प्लास्टिक के ब्लेड की भी बात नहीं कर रहा। वैसे तुम्हारे पास सुई भी आ जाए तो पता नहीं बड़ी न्यूज बनती है। मैं प्लास्टिक के ब्लेड की बात नहीं कर रहा।
मैं बात इतनी करता हूं, अगर तुम ऊपर से नीचे पूरे जिस्म के साथ रूह के साथ हुजूर के इश्क में मुब्तला हो गए तो फिर हथियार की जरूरत नहीं, तुम्हारे चलत फिरत से कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही मौत आ जाए, सिर्फ तुम आशिक मुस्तफा बन करके तो दिखा दो। इस जमाने में उठ करके दिखाओ, मुझे नशा से क्या लेना देना, मुझे शराब से क्या लेना देना, मेरे हाथ में ताश के पत्ते क्यों आए, मेरी जुबान पर गाने के नगमे क्यों आए, मैं तो उनका गुलाम हूं, सोऊंगा और उठूंगा तो ये कहकर मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हुजूर का गुलाम उनका खाता हो तो उनका ही गाता भी रहूंगा, आखिरी वक्त तक उनका बन करके रहूंगा। दुनिया ताने देती है तो छोड़ दो, नजरअंदाज कर दो, इसलिए कि हमने तारीख देखी है, जो हुजूर को छोड़ देता है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होता है। 2 साल पहले लखनऊ के उस राफजी कुत्ते को देखा होगा जो नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और पुजारियों में कशका लगाकर जाकर बैठने भी लगा, मीडिया की हॉट सीटों पर बुलाकर उसको बिठाया जाने लगा। आइए साहब, आपने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, इस्लाम छोड़ दिया है, 6 महीने से ज्यादा ये आओ भगत नहीं की जा सकती। अरे ये वो कौम है जो अपनी कास्ट के अलावा दूसरी कास्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तुम छोड़े हुए कुत्तों को कहां बर्दाश्त कर पाएंगे। 6 महीने के बाद पता चला, उधर से पुजारियों ने किक मार करके निकाल दिया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और फिर घूमता फिरता है। आज यही बात मैं यहां से भी कहना चाहूंगा, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिर्फ इतना करना है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से कोई कुछ कहता है हमें उसकी परवाह नहीं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और गुजराती सुन्नी तो आज ये बता करके उठे, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।